السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آواز صحیح آ رہی میری؟ جی شیخ۔ جی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے اللہ سے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا کورس عربی گرامر چل رہا ہے، اور آج ہم اس میں پڑھیں گے اسم، فعل اور حرف کی علامتیں، ساتھ میں مرکبات وغیرہ۔ چونکہ کل جو ہم نے سبق پڑھایا تھا تو تھوڑا سا ٹف لگا تھا، اور اسی لیے میں نے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا ہلکا سا ریپیٹ کر دیا جائے۔ اصل میں جو کل ترجمہ کرانا مقصد نہ تھا، شاید میں سمجھا نہیں پایا اور آپ سمجھ نہیں پائے۔ ہمیں صرف اسم، فعل اور حرف کو پہچاننا تھا، اور ہم نے اسم، فعل اور حرف جو تینوں حرکات ہیں، جو تعریفات ہیں جن کی اور جن کی علامتیں ہیں، ہم نے پڑھ لی تھی۔ تو آپ لوگوں کو امید ہے اللہ سے کہ آپ لوگوں کو وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسم کیا ہے اور فعل کیا ہے اور حرف کیا ہے، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس کو پہچان لیں گے۔ تو ایک ایک کر کے سبھی لوگ بتاتے جائیں کہ جو باع الرجل ثوبا، اس میں اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور حرف کیا ہے اس کے اندر، یا کون سا ہے۔ جی بسم اللہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ باع فعل، الرجل اسم، ثوبا اسم۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جی کوئی اور بتائیں؟ ایسے ہی صرف بتا کے جانا ہے، ترجمہ نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف بتا کے جانا ہے، فعل، اسم اور حرف۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بارک فعل، اللہ اسم، لام حرف، کم اسم ضمیر۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت خوب۔ جی آگے کوئی اور بتائیں۔ جی پڑھتے چلے جائیں، بتاتے چلے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یذهب الناس الی العربی، یذهب فعل ہے، ناسو اسم ہے، الی حرف ہے، عربی لوگ اسم ہے، العرب، العرب۔ جی العرب اسم۔ ماشاء اللہ۔ جی اور کوئی بتائیں آگے۔ أرسل الله نبيا إلى الناس. أرسل فعل، الله ہم، فعل. نبيا sorry. نبي نبیًا۔ اسم ہم، إلى حرف جر، الناس اسم. ماشاء اللہ۔ الناس کیا بتایا آپ نے؟ اسم ماشاء اللہ۔ عارفة. جی آگے بتائیں۔ فعل، سعيد اسم، سعيفة اسم، في حرف، شجرة۔ جی آگے کوئی اور بتائیں۔ ہلو ہلو۔ جی استاد، جی آگے۔ رجع ابراہیم من سفره. رجع فعل، ابراہیم اسم، من حرف، سفره اسم. ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جی آگے کوئی اور بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحرف، ترى فعل، کوكبا اسم، في جر، السماء اسم۔ فی حرف کہیں گے ہم، حرف
है ना, हरफ जर है, लेकिन अभी हम इसको हर्फ पढ़ेंगे ओनली। जी आगे, अलवलदु, तीन जुमले हैं, जल्दी से कर दें। मैं हम ही आगे कर का दूं? नया सबक शुरू करते हैं। जी कर दें, जी करते रहें, जिसको भी करना है कर दें। दू इसम यलअबु फेल फी हरफ जर अल अल बुस्तान अलबुस्तानी, ये इसम है। माशाअल्लाह। जी अतिफ्लु इसम यकरऊ फेल फी हर्फ असफी असफी इसम अल अव्वल इसम। माशाअल्लाह। जी अल्लाह इसम नज़्ज़ला फेल अल कुरान इसम मिन हर्फ अस्समाई इसम। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, बहुत खूब। ऐसे ही सिर्फ ये पहचानना था हमको। जी अब हम यहाँ से अपना नया सबक शुरू करते हैं, और वो है इस्म की किस्में। ठीक है, इस्म की तीन किस्में हैं, जामिद, मस्दर और मुश्तक। जामिद वो इस्म है जो ना खुद किसी से बना हो और ना कोई कलिमा उससे बने। जामिद वो इस्म है जो ना खुद किसी से बना हो और ना कोई कलिमा उससे बने। जैसे रजुलुन आदमी, फरसुन घोड़ा, ये जामिद है। मस्दर वो इस्म है जो खुद तो किसी से ना बना हो मगर उससे दूसरे अल्फाज बनते हों। मस्दर वो इस्म है जो खुद तो किसी से ना बना हो मगर उससे दूसरे अल्फाज बनते हों। ठीक है, और जामिद में क्या था कि वो ना खुद किसी से बना हो और ना कोई कलिमा उससे बने। ठीक है, लेकिन मस्दर में क्या है कि ये वो इस्म है जो खुद तो किसी से ना बना हो मगर उससे दूसरे अल्फाज बनते हों। जैसे नसरुन मदद करना, ज़रबुन मारना। मुश्तक वो इस्म है जो मस्दर से बना हो। मस्दर में क्या था कि वो इस्म है जो खुद तो किसी से ना बना हो मगर उससे दूसरे अल्फाज बनते हों, ये मस्दर है। और मुश्तक जो है, मुश्तक वो इस्म है जो मस्दर से बना हो। ठीक है, समझ रहे? और ये कितने हैं? ये 5 हैं। ये 5 है। मुश्तक वो इस्म है जो मस्दर से बना हो, और ये 5 हैं। नंबर 1 इसमें फाइल, जैसे आलिमुन जानने वाला। 2 इसमें मफऊल, जैसे मालूम जाना हुआ। इसमें आला, जैसे मिफ्ताहुन चाबी, मिफ्ताहुन चाबी। नंबर 4 इसमें वर्फ, जैसे मस्जिदुन मस्जिद यानी सजदा करने की जगह। इसमें तफदील, जैसे अकबरू सबसे बड़ा। ये 5 हैं जो हैं मुश्तक हैं, और ये कितने हैं? ये 5 हैं। ठीक है, और मुश्तक कौन सा इस्म है? जो मस्दर से बना हो। और मस्दर क्या है कि वो खुद तो किसी से नहीं बनता मगर मस्दर से अल्फाज बनते हैं। और जामिद क्या है? जामिद वो है जो ना खुद किसी से बने और ना कोई कलिमा इससे बने, ना कोई कलिमा इससे बने। तो ये तारीफात आपको हिफ्ज करनी है मा मिसाल के। ठीक है, अब हम आते हैं मुरक्कब। मुरक्कब क्या है? वो बात है जो 2 या 2 से ज्यादा कलिमों से मिलकर बने। 2 या 2 से ज्यादा कलिमों से मिलकर बने, उसको कहते हैं हम मुरक्कब। ठीक है, अब मुरक्कब की 2 किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। अब मुरक्कब मुफीद कौन सी है वो हम जानते हैं। मुरक्कब मुफीद वो बात है जिससे सुनने वाले को किसी वाकया की खबर या किसी बात की तलब मालूम हो। यानी सुनने वाले को कोई खबर मालूम हो या
उसको حسن कोई حاضر इसको सुनने वाले को यानी कोई वाकई की खबर मालूम हो या कोई चीज कोई जो तलब की जा रही हो वो उसको मालूम हो, जो मुतालबा है वो उसको मालूम हो, ये क्या है, ये मुरक्कब मुफीद है। जैसे हसनुन हादिरुन, हसन मौजूद है, हसन मौजूद है। दूसरी मिसाल अकीमुस्सलाह, तुम सब नमाज कायम करो। तो पहली मिसाल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बात खबर मालूम हुई वो क्या है कि हसन नामी शख्स जो है वो मौजूद है। और दूसरी मिसाल में ये पता चला कि नमाज कायम करना मतलूब है, यानी नमाज कायम कायम करो ये तलब किया जा रहा है। तो मतलूब क्या हुआ, नमाज कायम करना। और पहली मिसाल में क्या है कि हसन जो है वो हाजिर है, वो मौजूद है। तो ये क्या है, ये मुरक्कब है। और फायदा क्या हुआ, मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं। अब इसको आप समझें कि जो बात भी कही जाए, यानी कि जो बात कही जा रही है मुरक्कब मुरक्कब मुफीद में, कोई बात कुछ कोई कह रहा है, कोई आपको खबर दे रहा है या आपसे कोई चीज तलब कर रहा है, मालूम कर रहा है, उससे वो चाह रहा है आपसे, तो वो पूरी तरह से आपको मुरक्कब मुफीद समझना पड़ेगा। और वो मुरक्कब मुफीद ही होता है, वो मुरक्कब मुफीद होता है, जैसा कि यहाँ मिसालों में आपको मालूम हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं मुरक्कब गैर मुफीद पे। जब बात करने वाला खामोश हो जाए, जब बात करने वाला खामोश हो जाए और सुनने वाले को उससे किसी वाक़े की खबर या किसी की तलब मालूम ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। क्या कहते हैं, मुरक्कब गैर मुफीद। जैसे किताब जैदिन, जैद की किताब। अब इससे क्या समझ आ रहा हमें, कुछ नहीं। किताब जैदिन, जैद की किताब, कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे फौबुन जदीदुन, नया कपड़ा, फौबुन जदीदुन, नया कपड़ा। इन अल्फाज से सुनने वाले को जैद की किताब या नए कपड़े के बारे में न कोई नई बात या खबर मालूम हुई। ठीक है, और इनके बारे में कोई मुतालबा ही मालूम, इनके बारे में ना कोई मुतालबा ही मालूम हुआ, इसीलिए ये मुरक्कबात गैर मुफीद हैं। ठीक है, अब आप यूं समझें, मुरक्कब मुफीद वो हैं जिससे कोई बात समझ आ जाए मुकम्मल तौर पे और उसमें कोई आपको शक ना हो, पूरी तरह से वो बात अच्छे से आपको समझ आ जाए कि ये हमें कोई चीज बता रहा है या हमसे कुछ तलब कर रहा है। ये हो गया मुरक्कब मुफीद। और कोई इंसान अपनी बात कह लेता है, अपनी बात उसने कही और वो खामोश हो गया, तो अब ना तो ये आपको मालूम हुआ कि ये चाह क्या रहा है, यानी क्या तलब कर रहा है, ये भी आपको मालूम नहीं हुआ, साथ में आपको ये भी मालूम नहीं हुआ कि ये बताना क्या चाह रहा है। तो ये क्या होगा, ये मुरक्कब गैर मुफीद होगा, ये मुरक्कब गैर मुफीद होगा। तो इसको आप अच्छे से समझ जाएं। अब हम आते हैं जुमला मुफीदा की तरफ। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ जिसका जिस भी लफ्ज का आपको माना नहीं मालूम है आप वो पूछें और फिर आगे पढ़ें। ठीक है, अब आपको ये बताना है ये जुमला जो मुफीद है या गैर मुफीद है। ठीक है, तो अल्लाह वाहिदुन, अल्लाह वाहिदुन, अल्लाह एक है, ये क्या है, मुफीद है या गैर मुफीद है, बताएं कोई। मुफीद है। जी माशाल्लाह, मुफीद कैसे मालूम हुआ आपको, इसमें खबर मालूम हो रही है अल्लाह एक है। मालूम हो रही है अल्लाह एक है, यानी बात आपको पूरी, यानी जो खबर है उसकी वो बात भी समझ आ रही है और आपको खबर भी मालूम हो रही है। आगे कोई पढ़े, जिसका भी लफ्ज का माना नहीं मालूम पूछ सकते हैं, पहले पहले पूछ लें फिर पढ़े। जी बिस्मिल्लाह करें। सादिक, रसूल सच्चे हैं। रसूल सच्चे हैं, मुरक्कब मुफीद है या गैर मुफीद है। मुफीद है। जी माशाल्लाह, आगे पढ़े कोई। अर्रजुलु ज़ईफुन, आदमी ज़ईफ है, जी आदमी कमजोर है। कमजोर है। जी क्या है, मुफीद है गैर मुफीद है।
मुफीद है। माशाअल्लाह। आगे पढ़ें कोई। अलवलदु नाइमुन, लड़का सोया हुआ है। जी, लड़का सोया हुआ है, लड़का सो रहा है। मुफीद या गैर मुफीद है? मुफीद है। माशाअल्लाह। जी, आगे कोई पढ़े। असनमु आजिजुन, बुद्ध जी, बेबस है। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। बुत बेबस है। जी, मुफीद है गैर मुफीद है? मुफीद। मुफीद। जी, आगे कोई पढ़े। यहाँ पे अल्फाज का जो माना है मैंने लिख दिया है कि कसरा का क्या माना है वो भी लिख दिया, सनमुन और जमा असनामुन इसका माना क्या है ये भी यहाँ पे लिखा है, तो आप देख के भी पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सनमु आजिज, सनम बस है। जी, आगे मुफीद है। पढ़े। कसौरा इब्राहिमुल असनामा, इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा। जी, मुफीद या गैर मुफीद? मुफीद। जी, आगे पढ़े कोई। अकल अल्फारू, अकल अकल फअरू, मैं क्या किया? पढ़ दें अलग अलग पढ़ लें, कोई मसला नहीं। अकल फअरुल तुआम, अकल अल फअरु अत्तआम। जी, अत्तुआम। माना आपको देखो यहाँ पे लिखा है अकला खा यानी कि जो खाना है उसको खाया बोलते हैं, ठीक है। है ना? यानी हाँ, जी, फअरुन चूहा, अत्तामा खाना। चूहे ने खाना खाया। जी, मुफीद है गैर मुफीद है? मुफीद है। जी, माशाल्लाह। आगे पढ़ें। दौरब रजुलु वलद, आदमी ने लड़के को मारा। पूरा ये पूरा जुमला पढ़ें आप एक दफा दोबारा से। दौरब रजुलु वलद, जी, आप इन आदमी देखो ने अभी हमको क्या करना है, लास्ट वाले जो हर्फ है उस पर भी हरकत लगाकर चलना है, ठीक है। तो वलदहू। वलदहु, जी, आदमी ने लड़के को मारा। आदमी ने अपने लड़के को मारा, ठीक है, माशाल्लाह। जी, मुफीद है गैर मुफीद? मुफीद है। जी, आगे कोई पढ़े। ज़हबन नासु इला सूक़ी, इंसान गया बाजार की तरफ। जी, अन्नासु लोग, ज़हबा जाना, इला तक, अस्सूक बाजार, लोग गए बाजार की तरफ या बाजार। मुफीद या गैर मुफीद? मुफीद। माशाल्लाह। आगे कोई पढ़े। नसरुल्लाहु अब्दहु, जी, मदद अल्लाह ने अपने बंदे की। जी, अल्लाह ने अपने बंदे की मदद की। मुफीद गैर मुफीद? मुफीद है। माशाल्लाह। अब देखो ये जो नीचे बहस लिखी हुई है, तो इस बहस में जो मैंने आपको ऊपर समझाया है तो वो ही इसमें लिखा है, तो एक दफा इसको हम देख लेते हैं, और जहां भी आपको अगर समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो देखो पहले जुमले को देखो, वो दो लफ्जों से मुरक्कब है, एक लफ्ज अल्लाह और दूसरा लफ्ज क्या है, वाहिद। इस जुमला में अगर तुम सिर्फ अल्लाह कहो तो तुम कुछ नहीं समझ सकते, बल्कि तुम्हें ताज्जुब होगा कि अल्लाह क्या, उसकी सिफत क्या है, या वो क्या चाहता है। इसी तरह अगर तुम सिर्फ वाहिद कहो तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, और इस तरह तुम किसी से पूरी बात नहीं कह सकते। लेकिन जब तुम अल्लाह और वाहिद को साथ मिलाकर पढ़ोगे और यूं कहोगे कि अल्लाह वाहिदुन, तो तुम एक नई बात मालूम कर लोगे और तुम्हें पूरा फायदा होगा। वो ये कि अल्लाह एक है। वो क्या है कि वो ये अल्लाह एक है। इसी तरह मिसाल 6 को आप देखो तो 3 कलिमों से मुरक्कब है, पहला कलिमा कसरा, दूसरा इब्राहिम और तीसरा है अल असनाम।
इनमें से किसी एक से कोई फायदा की बात मालूम नहीं कर सकते। और यहाँ भी तुम्हें हैरत होगी जिस तरह पहले जुमले में हुई थी, लेकिन अगर तीनों कलिमों को मिलाकर पढ़ो तो तुम्हारी ये हैरत दूर हो जाएगी और तुम्हें एक नई बात मालूम होगी। वो ये कि इब्राहिम ने बुत तोड़े, इसीलिए इन जुमलों का नाम जुमला मुफीदा है। इसी तरह हर जुमला को समझ लें। आया समझ में आपको? नाम शेख। जी उस्ताद। जी माशाल्लाह बारकल्लाह। तो ये बात आपको मालूम हो गई कि कोई मुतालबा हो रहा हो या कोई खबर दी जा रही हो तो इसको मुरक्कबे मुफीद कहते हैं। और कोई खबर भी नहीं दे रहा है और कोई मुतालबा भी नहीं कर रहा है तो इसको मुरक्कबे गैर मुफीद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुरक्कबे गैर मुफीद। अब यहाँ पे जो आगे लिखा है इन्होंने, इन बातों से तुमने ये समझ लिया होगा कि एक लफ्ज बातचीत के लिए काफी नहीं है, बल्कि दो लफ्ज या इससे ज्यादा होने चाहिए, ताकि सुनने वाला पूरी बात समझ कर खामोश हो जाए और उसे कोई नई बात मालूम हो। ठीक है। अब देखो, ये जो मुरक्कब मुफीद है उसके दो कायदे हैं। इसमें देखें, जिस तरकीब से पूरी बात समझ में आ जाए उसे जुमला मुफीदा या कलाम कहते हैं। उसे जुमला मुफीदा या कलाम कहते हैं। जुमला मुफीदा दो कलिमों यानी दो लफ्जों या इससे ज्यादा से बनता है और हर लफ्ज जुमला का जुज कहलाता है। और कभी एक ही लफ्ज दो लफ्ज के कायम मुकाम होता है। इससे पूरी बात समझ में आ जाती है और वो जुमला मुफीदा कहलाता है। ये दो कायदे हैं जो आपको याद करने हैं, सिर्फ दो कायदे। अब देखो, जो यहाँ पे जो दूसरे कायदे का जो लास्ट हिस्सा है, और कभी एक ही लफ्ज दो लफ्ज के कायम मुकाम होता है, तो इसको हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये जैसे लिख दिया है, जैसे कुम तू खड़ा हो जा, कुम तू खड़ा हो जा। अब ये देखो एक ही लफ्ज है, इसमें कोई दो लफ्ज नहीं है अलग अलग, लेकिन ये एक ही लफ्ज है, लेकिन आपको पूरी बात इससे समझ आ रही है। जैसे इद्रिब तू जा, इद्रिब तू मार, इदहब तू जा। तो ये जो है एक ही लफ्ज है गरचे, लेकिन बात पूरी हो रही है, बात पूरी समझ आ रही है। इसीलिए जो यहाँ कहा गया है लास्ट में कि कभी कभी एक ही लफ्ज दो लफ्ज के कायम मुकाम होता है, इससे पूरी बात समझ में आ जाती है और वो जुमला मुफीदा कहलाता है। तो वो यही है, वो यही है। ठीक है। इसमें आप यानी कि मैंने लिख इसलिए दिया है, कहीं आप सोचें कि एक लफ्ज दो लफ्ज के कायम मुकाम होता है तो कैसे होता है, क्या है वो। तो यहाँ पे आप इस मिसाल को अच्छे से आप जहन में बैठा लें और ये जुमला मुफीद बनेगा। और ऊपर के दोनों कायदे आपको हिफ्ज करने हैं ताकि आप आगे चल के इनका फायदा उठा सके। तो ये आज मैंने मुख्तसर से आपको समझाने की कोशिश की है और इतना ही रखते हैं हम सबक। आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से समझ आएगा इंशाल्लाह। और मैंने जो तरकीबात हैं जो कठिन थी, जो यानी कि मुश्किल थी, वो निकाल दी हैं। और आसान जो तरकीब है जो मैंने ऊपर आपको कराई है, जैसे कि ये, तो ये बहुत आसान मुझे मालूम हुई, तो इसीलिए मैंने ये आपको करवाई है जुमला मुफीदा की। तो इसमें अगर आपको कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, और साथ में आप दोबारा से ये सब आपसे पढ़वाया जाएगा इंशाल्लाह। तो आप पूछ सकते हैं जो जुमला मुफीद या गैर मुफीद आपको कुछ समझ नहीं आया हो। शेख, जुमले मुफीदा का दूसरा कायदा क्या था? जुमला मुफीदा का दूसरा कायदा है, जुमला मुफीदा दो कलिमों यानी दो लफ्जों या इससे ज्यादा से बनता है और हर लफ्ज जुमला का जुज कहलाता है। और कभी एक ही लफ्ज दो लफ्ज के कायम मुकाम होता है, इससे पूरी बात समझ में आ जाती है और वो जुमला मुफीदा कहलाता है। ठीक है जी। जी। जैसे तुम तू खड़ा हो जा, इधरिब तू मार, इधब तू जा। ठीक है। इकरा तू पढ़। तो ये यानी एक ही लफ्ज दो लफ्ज के कायम मुकाम है। और जो जैसा कि कल
میں نے آپ کو جو پڑھایا تھا اگر اس میں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو تو آپ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں اس کا بھی، کیونکہ اس میں اسم، فعل اور حرف یہ ہم نے تینوں پرسوں پڑھے تھے غالباً، تو اس کی ہی جو تمرین تھی وہ ہم نے وہاں وہ کی تھی، اور آج جو ہم نے پڑھا ہے مرکب کا تو ہم نے اس کی بھی تمرین کی ہے، اور یہ تمرین ہم نہ کہہ کے بھی اس کو ایک جو مثالیں ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کی مثالیں آج ہم نے یہاں پہ اس کی پڑھی ہیں، جو یہ کچھ ایک مثالیں یہاں پر ہیں۔ تو اس میں آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا کل کا جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے پوچھنا شروع کرتا ہوں۔ الفاظ معنی کسی کو کچھ نہیں معلوم ہو اس میں سے، یہ صادق، الرجل، ضعیف، نائم، صنم،